Namaskar, 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 and welcome to another episode of Cosmic Coffee with Anshuman. Today we are stepping into subject that has fascinated humanity for thousands of years: ghosts, spirits, dreams, deja vu, haunted places, the unexplained things. नो मैटर वेयर यू गो इन दिस वर्ल्ड, कहीं पे भी चले जाओ, हर कल्चर के अंदर आपको कुछ ना कुछ ऐसी स्टोरीज मिल ही जाएंगी. कुछ एंसेस्टर्स के बारे में बात करती हैं, कुछ ऐसी अनदेखी चीज़ों के बारे में बात करती है, कुछ बात करती हैं हॉरर की. और जनरली अगर आप देखोगे, यहीं से हमारी आज की कन्वर्जेशन स्टार्ट होती है. नॉट विद द आंसर्स बट विद मोर क्वेश्चंस. एज एस्ट्रोलॉजर्स वी आर ऑफन आस्क्ड, कैन यू सी घोस्ट्स इन अ बर्थ चार्ट? क्या आप भूत देख सकते हो? क्या अष्टम भाव पैरानॉर्मल एक्टिविटी को दिखाता है? क्या केतु स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी को दिखाता है? द ट्रूथ इज एस्ट्रोलॉजी इज रियली दैट सिंपल, ऑल्दो, but no single graha, no single house can certainly speak of it. So we are not here to prove that ghosts exist. We are also not here to dismiss experiences that people genuinely believe they've had. Instead, we are here to explore how Jyotish approaches the unseen. Why do we, or some people, repeatedly see vivid dreams or uncanny intuition? Why do certain periods of life seem filled with unusual experiences? क्यों हमेशा कुछ ग्रह ऐसी चीज़ों से आपको वाकिफ करवा देते हैं? And why do certain dashas, they coincide with some profound psychological or spiritual experiences? And how do we genuinely separate curiosity from superstition? Because the beauty of Jyotish isn't that it claims to explain everything, it is that it encourages us to ask better questions. So grab your coffee and welcome our most intuitive guest so far. Let's welcome Malik. Malik has been a avid researcher in the field of Jyotish. He has been doing a lot of research in this particular field of paranormal activities and all that stuff. So let's welcome Malik. Hello. Okay, so quickly we will now welcome Malik. Malik is here with us. Let's get introduced to Malik. Hello, Malik. Hi, कैसे हो आप? I'm very good. How are you, Anshuman? I'm doing great as well. So, Malik, welcome to the Cosmic Coffee Show. Thank And we will continue with the discussion ahead. I'm sure it's going to be a great discussion. It's going to be a wonderful discussion. जो टॉपिक है वही ऐसा टॉपिक है जो कि इट इज़ द अनटच्ड साइड ऑफ ज्योतिष एज वेल. एंड रियल लाइफ के अंदर भी काफ़ी अनटच्ड चीज़ें इसके अंदर है. So, Malik, before we begin, I would like you to introduce yourself to the people around, and of course, uh, give a short introduction. आपका कैसे ज्योतिष में आना हुआ? How did you get introduced to Jyotish itself? What are your learnings out of it and your journey? So go ahead, please introduce yourself. Sure. First of all, thank you, Anshuman, for bringing me here. Hi, everyone. I'm Malik, uh, and I'm doing my PhD in the States in the field of mechanical engineering. And coming to the question, ज्योतिष का introduction मेरे life में बहुत पहले हो चुका था, probably somewhere around when I was in my 10th standard. And it was like on and off कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी, पर मेरे को सोर्सेस नहीं पता था कि कैसे करूँ क्या करूँ. बट एज द टाइम प्रोग्रेस्ड, probably as they say, Jyotish calls you. It's not the other way around. So you end up finding right sources, right people at right time. And I was one of the students of Anshuman, where I found him online via consultations. I find him very interesting, the way he sort of blends daily life with the astrology. So it sort of gave me certain resources that helped me latch upon it. So yeah, this has been my journey. Actively more than 10 years, but technically probably year and a half. Okay. So wonderful to hear, Malik, and I'm again welcoming you to the Cosmic Coffee Show. Let's quickly start off with the discussion now. काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ऐसा टॉपिक है जो कि डे टू डे एक्टिविटीज़ के अंदर कहीं ना कहीं हमको कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो ही जाता है, बट वी टेंड टू इग्नोर इट इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट. So we will continue the discussion about the paranormal activities from the lens of Jyotish, from the lens of astrology. Malik, what do you have to say about it? क्या क्या लगता है आपको? What kind of discussion we are heading towards? So probably this is that particular topic where it is still seen as taboo. And the reason for being it called taboo is because ज़्यादातर लोग बात नहीं करना चाहते इसके ऊपर.
क्योंकि दे डोंट नो वेदर इट इज रियलिटी और नॉट। एंड आपको पता है हमारे कुंडली में थोड़े ऐसे हाउसेस हैं जो इनको दर्शाते हैं। थोड़े लोग बोलते हैं कि हम एक जगह से गुजर चुके, मतलब गुजर रहे हैं, तो एक डिप इन एनर्जी होती है, नहीं तो रेस्टलेसनेस, बेचैनी, ये सब बढ़ जाती है ना। Hmm. It can be attributed to that. So I think this is an important topic to touch upon, ताकि हमें पता चले कि क्या हमें नहीं पता है। Even not knowing, like probably if you don't know what you don't know, then it's sort of an ignorance, right? So आपको Hmm. पता होना चाहिए कि क्या नहीं पता है आपको और उसको कैसे डील कर सकते हैं। Correct. In the at times in the sessions and the consultations as well, we get a lot of charts जिसमें ये बोला जाता है कि they sense some sort of unusual activities at their household, अपने around या फिर उनके day to day activities, office, workplace, कहीं पे भी they get a lot of it. So we're going to discuss all of this, and I'm sure it's going to bring up a lot more insights than we discuss in our regular Jyotish discussions. So let's quickly get to the presentation and let's see what it holds for us. I'm very much excited. So yes, Malik, it's all on to you now. The stage is yours. So basically, thank you Anshuman, thank you for that. Basically हम paranormal activity अपने मूवीज में देख चुके हैं। इट्स अ जॉनरा इन इटसेल्फ, हॉरर मूवीज, नहीं तो थ्रिलर्स दैट एक्चुअली may seem horror, but astrology is one of those sciences where it will help you to understand. Astrology is, according to me, astrology is nothing but analyzing patterns. It's full of mathematics, analyzing patterns. So we'll try to understand what sort of patterns indicate this particular area, right? Mhm. So, and coincidentally, as we record, moon is full. It's full moon, right? Yes, it Purnima tonight. Yes. Exactly. So, which is sort of pull, like as they say, alignment happens as it's supposed to, Mm. right? So, moving forward, what I tried to do here was like to understand few reasonably well-known paranormal investigators, Mhm. mediums, as they say, जो पॉप कल्चर में हो, ऑल अराउंड द वर्ल्ड पॉप कल्चर में मशहूर हो, जिन्हें पता है कि उन्होंने कुछ देखा है जो नॉर्मल आम इंसान नहीं देख सकता, Mm. एंड दैट इज सॉर्ट ऑफ पैरानॉर्मल, राइट? So Okay. I try to understand what are the patterns, and I took Anshuman's help in understanding this. So I would like to present this. So Anshuman, let's go. Okay. Uh, Now this individual Iker Jimenez, ये स्पेन का मशहूर जर्नलिस्ट और टेलीविजन होस्ट है। Mhm. अब देखा जाए, ये आदमी एक मशहूर जर्नलिस्ट, टीवी प्रेजेंटर, राइटर, रेडियो प्रेजेंटर एंड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एंड यूएफोलॉजिस्ट, यानी कि साइटिंग्स, ही लाइक्स टू साइट यूएफओस, जो कि ज्यादातर लोग मानते नहीं है, उतने ही लोग मानते भी है, राइट? Mhm. एंड फॉर द स्टार्टर्स, दिस इज कुंडली। 12 घर है इनमें। 12 घर में थोड़े साइंस की या थोड़े घरों की बहुत ज्यादा एक्टिविटी होने के कारण इन्हें उस उन चीजों में पुल बहुत मिलती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, थोड़े लोग दे आर नेचुरली इंक्लाइन टुवर्ड्स स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, थोड़े लोग एकेडमिक्स में होते हैं। These guys, they are into something which they are like, oh, this is not seen with the human eye. Let's try to delve into topics that are not uh, talked upon as we speak, right? Now, what I've observed is there's this particular house called Eighth House, which is not at all understood, or people fail to understand. I mean, it is sort of, according to me, if you ask me to define what's Eighth House is, like any Mhm. astrologer would say that whatever things in the world that cannot be understood or given a box or labeling can be attributed to Eighth House, be it research, occult, tantra, astrology. But eighth house doesn't alone give you the ability to seek paranormal. It should be supported by certain other houses and certain other placements. So as you can Mhm. see, there's a pattern over here. I have highlighted the patterns in the bottom half of the slide. Up, like I don't know whether I can point this. Okay, but I'll anyway speak it out. So
if you can see, this person is a Leo ascendant, and इनका घर 8th house है Pisces. Now this is an interesting topic. Pisces is one of those water signs, and we all know that water holds memory, right? So water also holds energies. सो ज़्यादातर ज्योतिष की दुनिया में आपको पता है कि ज़्यादातर रेमेडीज मून के रिलेटेड जो भी है पानी के जरिए दिया जाता है, राइट? एंड नाउ यू कैन सी दिस पर्सन्स 8th हाउस लॉर्ड इज कंजंक्ट विद 3rd हाउस लॉर्ड इन 5th हाउस. यहाँ पे 3 हाउसेस की एक्टिवेशन हो रही है जो whatever he has done his entire life is shaping upon. Like 8th house बहुत like unknown चीजें, या these guys or people who have active 8th house, they don't live on surface level. They try to scrape through the roots or something like that. So 8th house, and there is 3rd house, which is the house for communication, and 5th house, which is house of creative pursuits. That's why you can see he's into myriad of activities: journalist, TV presenter, writer, and you can see he's into all modes of communication, which means 3rd house is pretty active. So what he has done, unknowingly or knowingly, since his 8th house, 3rd house, and 5th house are like he has a stellium in 5th house, 5 planet stellium, which is very active. So unknowingly he has made his career out of it, and he's a paranormal investigator in Spain. It's a big one, mainstream one. And there's an important thing that's there is an important connection. जैसे कि हमें पता है कि मोक्ष त्रिकोण, यानी कि 4th, 8th, 12th में 12th हाउस का equally importance है इन चीजों में, because 12th house connects the materialistic world and the realms and worlds that are not part of this world. So that's why maybe he's interested in sighting UFOs, जो कि aliens वगैरह वगैरह है, right? Yes, people may find it on the surface level. People may find it, how is this possible? How did he identify? That's the beauty of Jyotish. Like your life will sort. Yeah, there is free will, there is destiny, but he sort of made his free will aligned with destiny, right? And आप देखिएगा, like Pisces की involvement बहुत ज़्यादा है यहाँ पर 8th house sign में. And मजे की बात है, in his Navamsh, which is D9, right, is also having same blueprint of Leo. So although planetary placements are changed, but the activation energies could be same. You can add Anshuman with regards to Navamsh if you want. जो मैं देख पा रहा हूँ ना यहाँ पे, एक तो ये जो कनेक्शन है ना वाटर साइन के अंदर, तो पहले तो वाटर साइंस आर प्रीटी मच एक्टिव. ओके, the 4th house is pretty much strong as well, along with moon sitting in that 8th house in the sign of Pisces. Pisces is again, as you told me, ये जो कनेक्शन बहुत प्रोमिनेंटली दिख ही रहा है इसके इनके चार्ट के अंदर. सो ही इज अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, एज वी कैन सी, राइट. ये बहुत सारा क्लस्टर भी आ रहा है नवमांश के अंदर भी. आप देखोगे ना, तो पहली बात तो ये है कि नवमांश में भी चंद्र इज इन द सेटिंग इन द 2nd हाउस ऑफ नवमांश इटसेल्फ, राइट. अब ये जनरली वाटर साइन में तो नहीं बैठा हुआ है, बट व्हाट आई कैन सी इज यहाँ पे भी मंगल का स्ट्रॉन्ग तो पहले से है ही सही. वाटर साइन अगेन इट्स वेरी मच स्ट्रॉन्ग, राइट. And of course the Navmansh itself, the 3rd house Navmansh, the 10th house of the Navmansh itself, ये सारे houses क्या है कि मिलजुल के उसकी पूरा जो मैप करते हैं वो आता है इनका communication and all that stuff. तो again it is pretty much active. I can see that it is pretty much active. मेजर चीज जो मुझे दिख रही है ना यहाँ पे, वो है इनका पंचम भाव, राइट. पंचम भाव इज द भाव ऑफ चित्त ना, ये चित्त है हमारा. तो ये जो चित्त है, इट इज काइंड ऑफ लाइक सो मच एक्टिव. नाउ अगर ये सही ढंग से यूटिलाइज कर रहे हैं, जो कि दिख रहा है कि ये कर रहे हैं, क्योंकि ही इज नाउ टॉकिंग टू द एलियंस एंड ऑल दैट स्टफ, द पैरानॉर्मल एक्टिविटीज एंड ऑल दैट स्टफ. तो ये पंचम भाव ऑलरेडी इनका बहुत एक्टिव है. इट्स एन इंटरेस्टिंग चार्ट यू हैव पुट अप, बिकॉज ये तो सब कुछ ही कर रहे हैं. मतलब ही इज डूइंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड ऑफ टेलीविजन, राइट. पॉजिटिव वाला भी, उसका डरावना वाला भी, दोनों ही सारा मिलकर ये सभी कर रहे हैं. एग्जैक्टली. एंड आप देखा जाए तो ये मेजर्स भी किया है कंप्यूटर साइंस में. लाइक इट्स नॉट जस्ट दिस. Probably he later part of his life he may have discovered this, but it's like you can see interesting placements over here. Rahu's active, that's why you get to see certain things. And yeah, this he's still active, by the way. So, and by the way, for the audiences, if you want to see charts of these kind or any of kind,
there is Astrobank, which is a free source. You can just type the keywords and you'll get multiple or plethora of charts where you can try to analyze yourself. This is an open source, right? And can you move to next slide, Anshuman? Yes, please. Yeah. And Ricky Paul Golden, ये मशहूर है. Sorry for the typo. He's not a Spanish journalist. He's an American journalist and a television host. He's actor, producer, director, television personality. सब कुछ है. And मशहूर like important चीज ये है कि इनके पिताजी PhD थे. इनके पिताजी, this is important. इनके पिताजी PhD किए, hypnotist थे, master of paranormal activities. उनका ख्वाहिश था कि probably last wish whatsoever कि इन्हें मतलब उन्होंने जो कुछ भी डॉक्यूमेंट किया इन चीजों के ऊपर एक शो बनाया जाए. एंड ही डिड इट, राइट? एंड इसका भी पैटर्न देखिएगा आप. 8th हाउस लॉर्ड जो कि मर्क्यूरी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ मर्क्यूरी व्हिच इज अ प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन एज वी स्पीक, conjunct with 12th lord of Venus and Ketu. And we all know what sort of planet Ketu is, right? And Venus भी 12th house से जुड़ा है, which probably if I'm not wrong, अगर काल पुरुष के हिसाब से देखा जाए तो बल मिलती है उन्हें एक्सॉल्टेशन पे. एंड यहाँ पे भी 12th हाउस का एक्टिवेशन हो रहा है. एंड इनका 8th हाउस साइन जेमिनी है जो कि मर्क्यूरियन है. अगेन फिर कम्युनिकेशन, मतलब actively he may not be citing or seeing those experiences or having those experiences, but he has become a medium of someone else's. And इनका 5th lord जाके 6th में बैठ रहा है, which is also a beautiful placement, although it's retrograde Jupiter. And आप देखा जाए तो Pisces की इन्वॉल्वमेंट फिर से हो रही है पर 5th हाउस में, जो कि क्रिएटिव पर्सनल्स में, जो अगर in these two charts with the previous chart and right now, 5th house is getting involved, 12th house is getting involved, and Pisces is also active. Your comments, Anshu? Right. अब देखो यहाँ पे भी Pisces is getting active. Yes. है ना? वापस Pisces का बहुत बड़ा रोल आ रहा है. It is the sign which communicates. जो ये फिजिकल और मेटाफिजिकल रेल्म्स है ना, इन दोनों के बीच की जो थिन लाइन है, ये Pisces है, क्योंकि यहाँ से फिर हम चले जाते हैं ऊपर, राइट? ये लग्न है, उसके बाद में लग्न आ जाता है, which is the material world and us and all that stuff. 12वां भाव is all about connecting with the आकाश itself, right? तो Pisces का फिर से रोल आते हुए दिख रहा है मुझे तो यहाँ पे. अगेन केतु इन द लग्न itself, केतु लग्न में होगा, 12वें भाव में होता है. I have seen these people, they can connect with these kind of energies very easily. और वो चाहते हैं नहीं चाहते हैं, अपने आप ही हो जाता है इनके. हो जाता है. जो नहीं चाहते हैं उनको स्लीप पैरालिसिस और ये सब की मैंने देखा है काफी बार. ये चीजें होती हुए, राइट? केतु इन द लग्न और द केतु इन द 12th हाउस, राइट? Because 12th house is sleep as well, and the sign of Pisces is sleep as well. So ये बहुत ही prominent एक चीज देखने को नजर आ रही है कि Pisces तो of course active है ही सही, केतु भी active है. अब लग्न में ही केतु आ गया, तो again it's kind of like very much interesting, right? And as I recall, आपके क्लासेस में आपने बताया था Pisces एक nocturnal sign, जो कि रात की साइन है. एंड आप एक इंटरेस्टिंग पैटर्न ऑब्जर्व कीजिएगा अब से, द कनेक्शन बिटवीन वीनस, केतु एंड मर्क्यूरी. यहाँ पे लगन में कंजंक्शन फॉर्म हो रही है. like what I see is like Venus बोला जाता है कि दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य वैसे, और केतु भी उन्हीं चीजों को दर्शाता है. मर्क्यूरी गिव्स द मीडियम टू स्पीक ऑन दोस थिंग्स, राइट? एंड what I understand is like probably you can find it out as well. As we speak, there is an interesting connection that forms between Ketu, Mercury, and Venus along these charts. This I found it prior after our initial discussion. जैसे कि हमारे initial discussion हुआ था कि 3rd, 8th, 12th और Pisces के ऊपर, यानी water signs वगैरह उनके ऊपर. This was an interesting sign where Ketu कई जगह पे Ketu Mercury के साइन में रहना, Mercury केतु के साथ कुछ एक्सचेंज बनाना, परिवर्तन पे होना, नहीं तो वीनस केतु मर्क्यूरी ट्रायंस पे होना, ये सब we'll see. Please take a note on that. And इनके D9 के ऊपर आपका क्या कमेंट है? मुझे तो अगेन D9 के अंदर देखो फिर से, क्योंकि मर्क्यूरी, केतु, वीनस तो तीनों लगन में बहुत ही पास बैठे हुए ना, तो इनका मांच की पोजीशन भी सेम हो गई है. यस, राइट, एक साथ ही हो गए, मतलब एक ही उसमें हो गए. दिस इज अगेन वेरी मच इंटरेस्टिंग. एंड क्योंकि इनके लग्न के अंदर लग्न पंचम नवम नवमांश का, which is basically your personality and all that. अब इनका देखो,
जो 9th हाउस ऑफ नवमांश है ना, इट इज योर अक्वायर्ड नॉलेज ऑफ सॉर्ट्स, ओके, कि आप कहीं से पढ़ोगे ना, वो ज्ञान हो आपको कहाँ से आएगा। बृहस्पति और सूर्य, एज यू टोल्ड, कि इनके फादर का बहुत बड़ा रोल था यहाँ पे, एग्जैक्टली, right? तो एग्जैक्टली। वो रोल भी दिखता है। साथ में इनका जो लगन है, ये देखो लग्न के अंदर भी यहाँ पे द साइन विच फॉल्स इज 9th हाउस में, मून का साइन आ रहा है, वाटर साइन अगेन, या, right? And where is the moon placed here? Moon is placed in the third house itself, right? So again वो ninth को बहुत एक्टिव बना देता है। तो इनके फादर के थ्रू ही इनको काफी ज्यादा गाइडेंस मिली है यहाँ पे, है ना, हर एग्जैक्टली। चीज को करने की ही। सो इट्स काइंड ऑफ वेरी मच इंटरेस्टिंग। नवमांश के अंदर तो दिख ही रहा है, नवमांश में भी चंद्र इज वेरी मच एक्टिव, राइट? सो ही माइट हैव बीन वेरी मच स्पिरिचुअल एज वेल, और धार्मिक वगैरह भी उनके उसमें तो हो ही सकते हैं। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज अगेन वीनस मर्करी केतु, एज यू पॉइंटेड आउट। इसको हम देखेंगे आगे के चार्ट्स में और भी ये रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो फिर वो किस कॉम्बिनेशन के साथ में बन रहा है और कैसे कैसे लोगों के साथ में आ रहा है। सो ही, यू टोल्ड मी ही इज एन एक्टर एंड अ प्रोड्यूसर, राइट? और इन्होंने होस्ट किया जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के शोज होते हैं उनको। Yeah. I'm not blanking on the show name, but Astro Blank में ये मेंशन किया गया कि I was very curious about his father's chart, मिला नहीं मुझे। His father was very active into these things. He sort of became a secondary role into that. मतलब sort of कि किसी और के एक्सपीरियंस को ये दर्शा रहा है। अच्छा, It's not first-hand experience, by the way. And he's a Scorpio rising. Again, involvement of water sign over here. और नेचुरल अष्टम है, तो Natural obviously ये तो दिखाई दिया, मतलब क्लियर इंडिकेशंस है इसमें। ऐसा नहीं हो रहा है कि हमको कुछ डाउट हो रहा है कि Exactly. हो सकता है, नहीं हो सकता है। दीज आर लाइक वेरी क्लियर इंडिकेशंस कि हाँ ये कुछ ना कुछ कर सकते हैं। एक चीज और है इसमें, फोर्थ हाउस का भी जो इन्वॉल्वमेंट होगा ना, दैट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। आई वुड लाइक टू नो मोर कि आगे अभी कैसे चार्ट्स आते हैं अपने पास, बट आगे इसमें भी डिस्कशन करेंगे हम फोर्थ हाउस के अंदर भी किस तरीके से Can we चीजें say हो- that his fourth house is afflicted, although Saturn is in his own sign? यानी मूल त्रिकोण पे है, डिग्री से मैच हो रहा है। आई थिंक अफ्लिक्शन तो क्या कहेंगे, यस ऑफ कोर्स, आई मीन फोर्थ हाउस इज द हाउस ऑफ इमोशंस एंड ऑल दैट स्टफ, राइट? तो यहाँ पे शनि का बैठ जाना अपने आप में ही थोड़ा बहुत तो ये शनि का इफेक्ट आएगा ही सही। तो यहाँ पे इनकी मदर की जो इन्फ्लुएंस था, उसकी वजह से भी इनको कुछ ऐसी चीजें देखने को मिल सकती हैं। बट आई एम नॉट श्योर, आई मीन वो डिपेंड करता है पूरा जो चार्ट है उस पर। यहाँ पे तो शनि अच्छा ही बैठा है, ऑब्वियसली खुद के मूल त्रिकोण पे बैठा है, एंड शनि ये नवमांश में भी चला गया है ना, गुरु साइन, तो आई गेस इट्स गुड, राइट? Yeah. And again, if you look at the pattern, you can see 8th house, 12th house being active with Ketu, as I mentioned before, and you can 3rd house be active with Moon in itself, right? Now, moving on to the next chart, can I? Yes, please. So, this lady, very interesting chart. My personal favorite, I would say, because she experienced it and she wanted to make a career out of it. She was not frightened. इनका पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हुआ, इनको लगता था कि ये हॉन्टेड है, ये डरी नहीं, क्यूरियस, मतलब क्यूरियोसिटी इतना जग गया है कि मैं इसके ऊपर करियर बनाऊंगा। एंड शी वाज इनवाइटेड टू मेनी शोज कि भाई आप डिटेक्ट करो क्या हो रहा है यहाँ पर, ऐसा। एंड लुक एट हर, शी इज एन एरीज असेंडेंट। अब यहाँ पे 8th हाउस और 12th हाउस का परिवर्तन हो रहा है, जो कि मार्स और जुपिटर का। एंड इनका 8th हाउस साइन है स्कॉर्पियो, जो कि हमारा पैटर्न जो है फिट हो रहा है कि वाटर साइन का इन्वॉल्वमेंट होना। एंड 3rd हाउस इनका सॉर्ट ऑफ राहु है, पर इसका डिस्पोजिटर जो है 10th हाउस में जाके बैठ गया, sort of makes a career. Like 10th house is usually on surface level, if we say, if we don't go much into significations, career दर्शाता है। And she is also a, like she's vocal about it, appeared in many paranormal shows or movies. This is probably one of the interesting charts, क्योंकि D9 में भी 8th house का involvement हो रहा है यहाँ पर, लग्न लॉर्ड जाके 8th में बैठ रहा है। यहाँ पे भी काफी, हाँ, तो 3rd हाउस 8th हाउस दे आर वेरी मच एक्टिव। 12th हाउस अपने आप ही एक्टिव हो गया, लग्नेश खुद ही जाके 12वें भाव में बैठ गया, राइट? Yes. वो भी है, और शुक्र के साथ में जाके बैठा है अपने आप ही। Exaltation शुक्र की। यस, इन द एक्सॉल्टेशन एज वेल, परिवर्तन भी हो रहा है। इट्स अ वेरी स्ट्रांग चार्ट। Yes. इनको कुछ हुआ थोड़ी ना कभी, मतलब ये तो शी वाज गुड एंड फाइन ना, इनको Good कोई and इफेक्ट fine. अभी she is active,
जैसे कि मैंने लाइन लिखा ना, वो शी वाज हॉन्टेड, डरी नहीं वो खेल, शी मेड अ प्लेग्राउंड आउट ऑफ इट इन अ वे. राइट, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग चार्ट. अब देखो, Yeah. स्ट्रॉन्ग चार्ट का यही नतीजा है कि इन सब के बीच में होते हुए भी इनको कुछ नहीं होना. Yeah. राइट. सो यस, दैट्स एन इंटरेस्टिंग वन. And also, one interesting activity over here is, although usually Jupiter को हम इन चीजों में मानते नहीं, if I'm not wrong, फेस वैल्यू से सात्विक प्लैनेट है, शोभा देती है, बट उनका साइन जो Pisces getting involved is an interesting aspect over here. And also at times 8th house में हावी हो रहा है. What do you what is your opinion on this? Yes, yes, because ultimately Jupiter is some sort of knowledge, right? And the connection. अब ये जो spirits हैं, it is always not the bad spirits, right? कोई जरूरी थोड़ी ना है कि वो बुरी हो. Also, Jupiter rules the natural ninth house. It is the house of your pitris and all that. हमारा lineage, हमारे पित्र, इनका भी भाव है. तो इनसे भी connection, Jupiter बनाता ही है. तो involvement of Jupiter is very much interesting, and बाकी सारे चार्ट्स में हमने देखा इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं हो रहा है. यहाँ पे शुक्र, केतु और बुध, इनका इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली हमको देखने को नहीं मिला है ना. डायरेक्टली नहीं मिला, इसमें नहीं मिला हमको. इसमें नहीं मिला. ठीक है. बट I mean, Mercury, Ketu, Mars, I mean, I tried to make a pattern out of it, but I didn't want to go into nakshatras and all because I'm little skeptical on that part, क्योंकि I'm yet to gain some knowledge on that, इसलिए I didn't go much into that. होगा, इनके कनेक्शन तो मिल ही जाना है कहीं ना कहीं. वो ये तीनों चीजें अगर एक्टिव हो रही हैं तो देयर इज अ पैटर्न. कांस्टेंट वो ज्ञान भी देता है, वो अवेयरनेस देता है, वो एक इंटेलेक्ट देता है इन सब से कनेक्ट करने का. नहीं तो आपके हिसाब से, इफ यू कैन रिकॉल, पाइसिस में पूर्वा भाद्रपद पड़ता है, लाइक एक पद पड़ता है, राइट? सो उसमें वीनस रहना, like Purva Bhadrapada is also one of the Ugra nakshatras, which may deal with these things. I'm little maybe later I'll find it out. Sagittarius जो राशि है, उनमें शायद किसी न किसी वजह से वीनस की या मर्क्यूरी की नक्षत्र हो सकती है. I don't know. I'm not sure. केतु का नक्षत्र आता है मूल नक्षत्र, और शुक्र का भी आता है. तो ये तो कनेक्शन बन सकता है. देख ले, इसमें डिग्रीज नहीं दिख रही मुझको, बट ठीक है. वो ऐसा नहीं है ना कि हर चार्ट में भी होगा, ऐसा तो कुछ. Exactly. Right. But let's move on to the next chart. Yeah. Right. यहाँ पे I'm interested to know कि आगे कौन से चार्ट्स में क्या-क्या और चीजें हैं. This guy Chris Fleming, again, interesting word here, wordplay. ये अपने आप को मीडियम समझता है, मतलब बात कर सकता है, नहीं तो उनको महसूस कर सकता है. एंड ये भी पैरानॉर्मल रिसर्चर है, टीवी पर्सनालिटी है, पब्लिक स्पीकर है. इनका भी देखा जाए आपको केतु लगन में है. एंड इनका लगन लॉर्ड जो वीनस है, 9th हाउस लॉर्ड मर्क्यूरी के साथ एक्सचेंज में 8th और 9th का परिवर्तन हो रहा है यहाँ पर. एंड D9 राइजिंग हो रही है पाइसिस की, वहां पे मून है. एंड व्हाट आई अंडरस्टैंड इज लाइक अगेन इन्वॉल्वमेंट ऑफ मर्क्यूरी, 8th हाउस, 3rd हाउस एंड पाइसिस somehow. This is a repeating pattern. लगन में फिर से इनके केतु आ गया है, और rising sign in the Navamach is Pisces, right? Which is moon is already placed in that, है ना? शुक्र का कनेक्शन केतु के साथ में है ही सही, और बुध का कनेक्शन भी शुक्र के साथ में है ही सही. And look at D9 11th house. मिल गया, एक साथ ही बैठे हैं नवमांश के अंदर. It's interesting. But I wouldn't say he's utna mashhoor. He did some sort of thing, but what I've seen compared to other guys, he's not so active at this point of time, if I'm not wrong. Okay. Yeah. And I don't see any interesting or new pattern coming up over here. Repeat hi ho raha hai. But one thing for sure is like कि 8th हाउस का एक्टिवेशन हो रहा है with respect to a communicating planet, or a planet that is responsible to communicate with these things. मर्क्यूरी का इन्वॉल्वमेंट होना एक चीज, थोड़े चार्ट्स में 8th हाउस का साइन मर्क्यूरी हो रहा है,
नहीं तो 8th हाउस में केतु या राहु बैठना, जो परे वर्ल्ड की चीजें दर्शाती है, राइट, सम सॉर्ट ऑफ कनेक्शन बनाने के लिए ये ग्रह इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना। हो जाते हैं. एंड सॉर्ट ऑफ आई ओवरलुक्ड वीनस, बट वीनस का प्ले बहुत हो रहा है यहाँ पर. जैसे कि कभी कभी 8th हाउस में होना या 12वीं में होना, 8th हाउस का साइन होना. वो देखो जनरली 8th हाउस के अंदर शुक्र रूल कर ही रहा है 8th हाउस को भी, लग्नेश भी है, चंद्र के साथ बैठ गया है। चंद्र के साथ बैठ गया है तो फिर वो ऑटोमेटिकली आप देखने को मिलेगा ना आपको कि मन का जो रिलेशन है वो अष्टम से अपने आप ही बन गया है ना। Yeah. तो इट इज ऑल्सो वन थिंग, मून जाके पाइसिस में भी बैठ गया है और जेमिनाई में है ही सही, तो इट इज अ साइन ऑफ कम्युनिकेशन एंड ऑल दैट, राइट? Yes. And I'll move to the next chart. यस, ये मशहूर कपल कॉन्जूरिंग सीरीज, राइट? इनका हस्बैंड का चार्ट नहीं मिला, एड लोरेन शायद उसका नाम, उनका नाम वैरन लोरेन की मिली है. एंड ये अमेरिकन क्लैरवोएंट, दिस इज एन इम्पोर्टेंट वर्ड. इसका इनका मतलब है कि ये आंखें बंद करके रिमोट व्यूइंग कर सकती है कुछ भी चीज का, ओके, एंड लाइट ट्रांसमीडियम एंड स्टफ लाइक दैट. इनका इंटरेस्टिंग पैटर्न यहाँ पे कि 7th हाउस कनेक्ट हो रहा है, एंड वी नो यूजुअली 7th हाउस इज आवर पार्टनर. इनका पार्टनर भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है. 8th हाउस लॉर्ड इन 7th हाउस एंड 12th from 8th. Partner is also a paranormal investigator, and 8th house sign is Pisces. Although it's empty, it's Pisces. And coming to planet in 3rd house, कुछ भी नहीं है, पर उनका थर्ड लॉर्ड जो कि गया 7th हाउस में कंजंक्ट हो रहा है 8वीं लॉर्ड से. फिर से कनेक्शन हो गया 3rd and 8th का. ये मून केतु भी देखो पंचम भाव में, पंचम भाव में एग्जैक्टली मून केतु, मून के साथ में केतु आ गया. और हाँ, ये तो मतलब इन पे तो फिर वो मूवी भी बन गई है ना, हाँ, तो ये तो काफी फेमस भी हो गई इस चीज को लेके. ऑफ कोर्स इट इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग राहु एज वेल. अगेन पाइसिस साइन तो आ ही गया है, और साथ में लग्नेश इनका कहाँ बैठ गया, लग्नेश चला गया है छठे भाव के अंदर है. और लग्नेश अच्छा ठीक है, नवमांश में भी, नवमांश में राहु conjunct with Jupiter in 8th house, and Jupiter is getting debilitated. I don't know what's the effect on that, but I feel in D1 also Jupiter is not so comfortable. Although उनका Saturn से उतना ये नहीं है. No, ये जुपिटर इज काइंड ऑफ लाइक ये दिग्बल भी खो रहा है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी नहीं है इसके पास. नवमांश में नीच का हो रहा है ये, तो इट्स आई वोंट कंसीडर दिस जुपिटर टू बी वेरी स्ट्रांग. ओके, सो शी वाज अ क्लैरवॉयंट, राइट? वो तो मून केतु, मुझे लगता है दिस इज द क्लियर इंडिकेशन कि हाँ ये तो हो ही सकता है ना. पंचम भाव के अंदर मून केतु है और 12th लॉर्ड है मून, व्हिच इज सिटिंग इन द 5th हाउस ऑफ चित्त अगेन, राइट? आपके बुद्धि के अंदर ही आके बैठा ही है, तो ये सारा दिमाग जो है वहां पे जाएगा ही जाएगा. And I wanted to clarify on this one of the things with you. अब D9 5th हाउस देखिएगा, Saturn exalt हो रहा है. Now D9 5th house and D1 के 5th house में you'll see creative pursuits, चित्त वगैरह and other significations, but those are not relevant to our topic right now. D9 पे भी हम वही मैप कर सकते हैं क्या? D9 5th house is things you learn by yourself. खुद से सीखोगे आप जो, खुद से सीखोगे ये सब चीजें. वैसे तो शनि is the कारक of अष्टम, natural कारक of the अष्टम half itself, and all the paranormal activities या फिर छुपी हुई चीजें, रिसर्च ओरिएंटेड चीजें, ये सब कुछ शनि है. तो दैट इज अगेन, अब ये ठीक है, मतलब इट्स काइंड ऑफ लाइक अ सिचुएशन कि इनको ये शनि वाली नॉलेज जो है ना ये खुद से सीखेंगी, एक्सॉल्टेशन पे रिसर्च वगैरह करेंगी तो ये खुद सीखेंगी ये सब चीजें. दैट कैन बी डन. Yeah, probably she passed away recently, 2019 में आसपास, I don't know. I tried to get her husband's chart but couldn't find. So you want me to go to next chart? यहाँ पे भी देखो शुक्र बुध केतु नवमांश के 2 6 10 के ट्राइन्स में आके बैठ गए. ट्राइन्स पे तो मरकरी केतु तो है ही एक ही राशि के अंदर बैठे ही है. शुक्र भी बैठा वाटर साइन के अंदर हो रहा है, कुछ तो बन रहा है इनका. हाँ राइट. ये आपने क्या शुक्र, मेरे को ऐसा लगता है कि वो जो स्पाइडर मीम रहता है ना तीनों का स्पाइडर, हाँ वही हो रहा है इनका सब चार्ट. आपने क्या ऐसे सेलेक्ट किए थे या फिर अपने आप ही बन गए? नहीं मैं like eventually when I was making this presentation I sort of felt कि कुछ हो रहा है यहाँ पर.
अच्छा, तो ये अपने आप ही बना है ना, शुक्र बुध केतु अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि भाई हम हैं, है राइट? दिस इज द कॉम्बिनेशन जो कि इतना फेमस नहीं है हाँ कि शुक्र एंड बुध शुक्र केतु। का बिल्कुल ही हम ओवरलुक किए थे अपने इनिशियल डिस्कशंस में, आपको याद है तो। शुक्र करेक्ट, बोलता है कि मैं हूँ उनका दैत्य गुरु, मैं आऊंगा ना सॉर्ट ये ऑफ। बात या राइट। एंड नेक्स्ट वन, ये बंदा, इनका भी हम्म, इंटरेस्टिंग चार्ट है। चिप कॉफी, ये साइकिक है, मीडियम है, ये भी क्लैरवॉयंट अपने आप को मानते हैं, पता है, लाइक ही इज इनटू लाइक मेनी टीवी शोज और समथिंग लाइक दैट। इनका भी इन्वॉल्वमेंट देखिएगा पैटर्न, 8th हाउस लॉर्ड इन 10th हाउस विच इज अगेन मर्क्यूरी, एंड 8th हाउस में जेमिनाई की साइन हो रही है, केतु वहां पर है मौजूद विद जुपिटर। ओके, एंड थर्ड हाउस के प्लैनेट कुछ नहीं है, पर थर्ड लॉर्ड जाके बैठ गया 12th में एंड एक्सॉल्टेशन पे। ओके, एंड पाइसिस इनका क्रिएटिव परस्यूट्स का हाउस हो गया, यानी कि 5th हाउस। प्लॉट, यस, एंड फिफ्थ। D9 राइजिंग भी पाइसिस है विद केतु एक्टिव। और शुक्र इज अगेन इन द ट्राइन्स इन द एग्जैक्टली, मार्च एज वेल। और यहाँ पे शुक्र कहाँ बैठे हैं भाई? शुक्र गए हैं छठे नंबर राशि में डेबिलिटेट होके। डेबिलिटेट होके ओके, इसका ट्राइन्स में नहीं बन रहा ना, डायरेक्ट इसमें लगन में नहीं है। लगन। नवमांश में वैसे ठीक है, बुध की राशि में बैठा है, शुक्र और केतु दोनों बुध की राशि में बैठे ही है, दैट्स अ राइट? कनेक्शन इटसेल्फ। तो कनेक्शन बन ही गया अपने आप ही। इंटरेस्टिंग। और इनका पंचम लॉर्ड भी आके बैठ गया ना, देखो, केतु के साथ अष्टम केतु, भाव के अंदर। 5th एंड 8th की कनेक्शन, 3rd एंड 12th की कनेक्शन। तो ये तो काफी क्लियर इंडिकेशंस है कि ये सारे कनेक्शन बन ही रहे हैं ना, पंचम का अष्टम से, और ये सब अष्टम का भी इन्वॉल्वमेंट होना, 12वें भाव का, 12वीं नंबर की राशि का इन्वॉल्वमेंट होना, है ना? यस। ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। और शुक्र बुध केतु तो वैसे भी ऑब्वियसली है ही सही। नवमांश के अंदर राइजिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, है ना? यस, ये देख लो आप, पाइसिस, या केतु इन हर पाइसिस। एक चार्ट के अंदर नवमांश राइजिंग में मोस्टली जो ये सब कर रहे हैं ना, तो नवमांश जो राइजिंग हो रहा है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। यस। एंड यू सी, जो ये नवमांश होता है ना, D9, इसका जो फर्स्ट हाउस है लगन है, ये करता है आपके फर्स्ट, फिफ्थ और नाइन्थ हाउस को लगन के, यानी असेंडेंट जो आपका D1 कुंडली है ना उसका। तो आपकी पर्सनालिटी, आपकी बुद्धि, इन सब चीजों को मैप कर लेता है फर्स्ट हाउस। तो आपकी बुद्धि, आपका ओरिएंटेशन किस पे होगा, आपकी पर्सनालिटी किस चीज से इन्फ्लुएंस होगी, वो सारा लगन नवमांश का फर्स्ट हाउस है। ओके, स्पेसिफिकली फर्स्ट हाउस। सो ये इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट कि फर्स्ट हाउस में हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो ही रहा है नवमांश के, है ना? Exactly. Inka, what I've observed in all the charts, if we go back and forth also, as we see, the Lagan of D9 is not of pure energy. जैसे कि if I recall correctly, आपने बोला कि एक प्लैनेट एक साइन को ऑक्यूपाई करेगी तो उनका एनर्जी आ जाती है, मतलब उनकी ऊर्जा आ जाती है। It's like having an empty house is lot better than having a planet, करेक्ट। right? Sort of D9 इनका टैम्पर हो रहा है। वो फिल्टर लग रहा है, केतु का फिल्टर लग रहा है यहाँ पे, है ना? हालांकि केतु इन द पाइसिस साइन तो मेरे को लगता है अच्छा ही है, बट वो अच्छा इस फील्ड के अंदर ले आया वो उनको। अदरवाइज ये इनको कोई और ग्रह होता तो शायद परेशान कर सकता था, कुछ और कर सकता था, बट केतु आया तो ये इसमें आ गए, है ना? दैट्स इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट चार्ट। यस यस प्लीज। ओके, अब तक हम लोगों ने जितने भी चार्ट्स देखे, वो लोग पैसे बनाए इनसे, वोकल थे, वोकल इन द डायरेक्शन की हमने महसूस किया, हमें कुछ नहीं हुआ, सॉर्ट ऑफ थिंग। वी वांटेड टू एक्सप्लोर इट, क्यूरियोसिटी। पर ये बंदा माइकल जोन्स, ये बंदा तो ही इज अ विक्टिम, आई वुड से, क्योंकि इसके ऊपर पोर्टुगीज की एक्टिविटी बहुत हुई है। एंड I didn't mention the entire thing. You can just type it and you can get from AstroZone. Because obviously there are certain things that which can't be discussed over here. इनका 5वीं बर्थडे के ठीक पहले ही इनके ऊपर 3 एसोसिएशंस हुए, 3 एग्जॉर्सिज्म, आई थिंक दैट गॉट कट ऑफ, 3 एग्जॉर्सिज्म के एक्टिविटीज हुए इनके ऊपर। एंड यू कैन लुक एट द पैटर्न, इनके ही नहीं, इनका घर को पूरा महसूस हुआ, द डोमेस्टिक एनवायरनमेंट, ऑल ऑफ देम। इनका पैटर्न देखिएगा, जुपिटर राहु 4th हाउस में है, पाइसिस, मोक्ष त्रिकोण का फर्स्ट एक्टिवेशन हो गया, 4 8 12 में 4th, राइट? and 5th lord in 5th in D9 in Pisces. This I didn't know how to make of it, just I wanted to have a discussion with you
क्योंकि स्वराशि में है जुपिटर, इसलिए मैंने रखा उसके ऊपर वहां पर। अभी देखा जाए तो 8th हाउस का जो लॉर्ड 6th में जा रहा है एंड एग्जॉल्ट हो रहा है, एंड 8th हाउस साइन भी वाटर साइन है इनका, जो कि कैंसर, ऑब्वियसली वो पैटर्न वैसे ही बनती है। एंड प्लैनेट इन 8th एम्प्टी, एंड इसका देखिएगा आप D9 में 8th लॉर्ड जाके लगन में बैठ रहा है स्कॉर्पियो राइजिंग के, एंड 3rd लॉर्ड सैटर्न यहाँ के जो कि बैठ रहा है कि 12th में वीनस के साथ। ये हो गया ना, देखो वापस से इनका लगन तो फिर से नवमांश का लगन फिर से आ गया है, स्कॉर्पियो पाइसिस यही चल रहा है ना, यही चल रहा है कहीं ना कहीं पे। और इनके साथ में तो मतलब एक्टिविटीज हुई है, ही वाज स्कैर्ड ऑफ इट, राइट? एग्जैक्टली। I don't know what's the current status of this guy at this point of time. जहाँ तक पता है कि बंदे का अच्छा एक्सपीरियंस नहीं। This guy is alive, right? Not sure. He must be. Footnotes है 2010 के आसपास, afterwards no idea. अच्छा, ठीक है, बट इन्होंने बहुत ही जल्दी अपनी लाइफ के अंदर एक्टिविटीज को एक्सपीरियंस कर लिया, है ना? Exactly. And D9 का 4th हाउस भी देखा जाएगा तो if you can call it Ketu Saturn, it's also a problematic. हाँ बिल्कुल, ये D9 का 4th हाउस विल, ये जो इनके 8-12 हाउसेस हैं उसका फाइनल आउटपुट है 4th हाउस ऑफ द D9। यहाँ पे सैटर्न केतु है, सैटर्न इज स्ट्रांग एज वेल। तो अब सैटर्न तो एक तरीके से डराने वाली बात नहीं है, बट सैटर्न इज कंसिडर्ड टू बी द यम बिकॉज इट्स द planet which rules the काल part of it, right? मार्केश क्या हो जाता है ना ज्यादातर, तो ये यम हो गया, ये यम हो गया ना, यमराज को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? और केतु क्या, शनि भाई है ना उनका, यमराज का? ना, शनि इज considered to be the personification, let's say ग्रहोनिफिकेशन is okay, I get it what you're saying. तो वो डीटी जो है ना उनके यम आ जाता है, क्योंकि काल आ जाता है ना, अब काल तो खत्म करने के लिए ही है, तो वो है। और केतु इज चित्रगुप्ता, the one who takes notes of your karma and all that. तो कहीं ना कहीं इनका पास्ट लाइफ से बहुत बड़ा एसोसिएशन होगा इन सब चीजों का, तभी जाके इनको नवमांश के अंदर which is his धर्म, इट्स डीएनए, उस डीएनए के अंदर इनको सैटर्न केतु का कॉम्बिनेशन एक साथ में मिला। और अब ये डिपेंड करता है कि भाई इनके पास्ट लाइफ कर्म कैसे हैं, क्या है, जो भी है, दैट इज अनदर टॉपिक। बट कहीं ना कहीं पे वो जो एक्टिविटीज है, वो जो रिलेशन है यू नो चीजों से, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से, वो पास्ट लाइफ से आ रही है, दैट फिगर आउट, ये चीज हम देख सकते हैं आराम से। और अगेन फिर मरकरी क्या, ये जो लगन राइजिंग है नवमांश के अंदर, इट इज स्कॉर्पियो, तो ले देके फिर वो वापस से वहीं पे सुई आ जाती है ना? तो हम सेफली कंक्लूड कर सकते हैं जो भी डेटा सेट है हमारे साथ, कहीं ना कहीं वाटर साइंस का इन्वॉल्वमेंट होना ही चाहिए, एनर्जीज का इंटरप्टमेंट होना, क्योंकि वाटर हैज मेमोरी एज वी नो, कि पाइसिस, कैंसर, पर कैंसर की एक्टिविटी बहुत कम है कंपैरेटिवली, ज्यादा इंटेंस एक्टिविटी रही है अपनी पाइसिस और स्कॉर्पियो के लेकर। स्कॉर्पियो इज नेचुरल अष्टम, right, or Pisces is natural Bharva, right? And probably I'm done with my charts. We'll just discuss or wrap it up with the recurrence of patterns. Yes, please. What have you figured out? क्या recurrence हो रहा है? Mercury, Venus, केतु तो है ही सही ना? सब में ही exactly. I sort of made possible connections with aspect-wise, conjunction-wise, exchange of rashis, परिवर्तन वगैरह वगैरह। अपना इकर इमिनेस जो पहला बंदा है, उनका मर्क्यूरी वीनस कंजंक्ट है 5th हाउस में, दोनों एस्पेक्ट कर रहे हैं केतु को 11th में, वहाँ एस्पेक्ट बन रही है। ओके, ऑल्दो aspect can be considered weak compared to a conjunction, but still the effect will be there, right? अभी रिकी पॉल गोल्डन का, इनसे ही पता चला मेरे को कि भाई ये मर्क्यूरी वीनस केतु का कुछ कनेक्शन हो रहा है लगन में, तो कहीं ना कहीं, और इनका कोई कनेक्शन आई वाज नॉट एबल टू एस्टैब्लिश, मे बी एनॉमली कह सकते हैं आप, नहीं तो कुछ ना कुछ होगा। कैथरीना वीडमैन, केतु इन 9th, मर्क्यूरी इन 10th, वीनस इन 11th, वीनस इन 12th, सॉरी। अभी
इनका क्रिस्ट फ्लेमिंग का भी केतु इन लग्न, जो कि वीनस की साइन पे है, लिब्रा, एंड मर्क्यूरी इन 8th एंड वीनस इन 9th। यहाँ परिवर्तन योग हो रहा है, मर्क्यूरी जाके वीनस में बैठा, वीनस जाके मर्क्यूरी में बैठा, सो फिर से एक ट्रायड बन रही है। एंड वैरन लोरेन का भी इट्स सॉर्ट ऑफ दे आर लाइंड अप, मर्क्यूरी कंजंक्ट एंड इन ट्राइन एज वी डिस्कस टू वीनस इन D9। ये D9 में एस्टैब्लिश हो रहा है इनका वैरन लोरेन, जो कि कॉन्ज्यूरिंग की वो लेडी थी। राइट। सो अल्टीमेटली वाटर साइन का तो हमने डिस्कस कर लिया, वाटर साइंस तो हो ही रहे हैं ना एक्टिव, पर इसका मतलब ये नहीं है जो वीडियो देख रहे हैं, जो ये देख रहे हैं लाइव, ये सब के कॉम्बिनेशन है तो वो भी ऐसे। भैया ये जो लोग थे, ये लोग सारे के सारे दे वर वेल अकम्पलिश्ड पीपल एक्सेप्ट फॉर द वन चार्ट व्हिच वी सॉ, ठीक है। वो लोग और भी बाकी काम कर रहे थे दुनिया भर के, exactly. ऐसा नहीं उसी के अंदर सारे इन्वॉल्व हो गए हैं। सो इट वाज अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ, नॉट द लाइफ इटसेल्फ। सो टू नोट के कोई जरूरी नहीं है। एंड वन मोर थिंग आई थिंक बहुत जरूरी है इस चीज में हमको समझना कि जो 4th हाउस है ना अपनी कुंडली का, ये 4th हाउस इज योर प्रोटेक्टिव शील्ड, is your emotional well-being and all that, and it is all protected by Guru itself. Guru is nothing but your lineage, your pitris, your people who protect you. Okay, because Guru gets exalted in the 4th house of the 4th number Rashi, Cancer, yes. Right? Yes. तो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन आ जाता है नेचुरली, है ना। एक माँ का जो प्रोटेक्शन होता है, इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेक्शन व्हिच वन कुड गेट, राइट। मदर का मतलब हो गया सिर्फ अपनी बायोलॉजिकल मदर नहीं, बट रादर द डिवाइन मदर एज वेल, माँ दुर्गा। ये सब जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि 4th हाउस अगर स्ट्रांग है ना, 4th हाउस के अंदर आप रेमेडीज कर लेते हो या फिर सब कर लेते हो, नथिंग कैन हार्म यू, दैट इज फॉर श्योर। लग्न स्ट्रांग है तो वो कनेक्शन नहीं बन पाएगा आपका कि आपसे वो भारी जो शक्तियां हैं वो आपसे कनेक्शन बना पाए, क्योंकि आपका पर्सनालिटी, आपका खुद का एक ऑरा ही इतना स्ट्रांग है कि वो उस ब्रेक नहीं कर पाते हैं उस चीजों को। एंड कहीं ना हम ये कह सकते हैं कि 8th house is 5th from 4th, right? So उससे क्या होता है कि whatever you do well, मतलब 5th is something like पूर्व पुण्य. If I'm treating 4th house to be like पूर्व in a way, if I strengthen my 4th, automatically उनका impact 8th पे भी होगा ना, 8th will also get resolved. Impact तो हो गई ना, जो भी होता है साथ में ट्राइन्स लेके चलता है सब कुछ। Exactly. The strongest, because it is a केंद्र, तो strongest among them would be the 4th house, of course. और ये बहुत जरूरी है ये समझना हमको, of course, कि भाई 4th house strong अगर है तो आपके साथ में भगवान आपका साथ देते हैं, आपका प्रोटेक्टिव शील्ड आपकी बनी जाती है ना। और वो 4th हाउस को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? 4th हाउस को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं बाय डूइंग मंत्र जाप, राइट? बिकॉज द प्रोटेक्शन ऑफ मन इज मंत्र इज ऑल अबाउट, एंड हेंस द 5th हाउस इज ऑल अबाउट। तो 4th हाउस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको पंचम भाव का इस्तेमाल करना पड़ेगा, विच इज मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, ये सब करेंगे अपने आप ही 4था भाव स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो फिर ये सारी एक्टिविटीज अगर हो भी रही है, आपको लग भी रहा है कि हम देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से, तो आई डोंट थिंक कि हमको इतना डरना चाहिए। वी शुड डू द मंत्र जाप एंड गेट इट डन विद, वो आराम से हो सकता है, राइट? एंड यस, जिनको अपना करियर बनाना है, ये सब बनाना है, तो वो तो सब कुछ कर ही सकते हैं। बट यस, आई गेस इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन। थोड़ा बहुत टेक्निकल है क्योंकि ये चीजें ही इतनी सीरियस हैं कि इनको हम इतना कैजुअली नहीं ले सकते, of course. So I guess I studied a lot from this knowledge, this information which you shared. Now, Malik, I do have some questions for you. We are going to do with all of our guests a rapid fire round. Okay, I have prepared a few questions for you. ये rapid fire में क्या है कि आपको ये बताना है कि जो मेरे questions हैं उनको just randomly I'm going to ask a set of questions to you. And you have to answer those, okay? ज़्यादा बिना सोचे समझे नहीं, whatever your instinct. Yeah. Right. So let's start off with the rapid fire, okay? You ready, Malik? बिल्कुल. Okay. So the first question is, which graha is a true gateway to the unseen among these three? केतु, मून और सैटर्न, इन तीनों में से कौन सा आपको लगता है कि एक गेटवे है पैरानॉर्मल या फिर अनसीन का? मून. एंड व्हाई? मून इन्फ्लुएंसेस योर माइंड अ लॉट. आपका माइंड जो बोलते हैं ना अपने, लाइक इफ यू आर डूइंग वर्क, कीप योर माइंड एंड वर्क, राइट? अगर माइंड उस डायरेक्शन में जा रहा है तो खिंचवा, मतलब कोई पुल है तो डेफिनेटली वही जाएंगे ना आप.
sometimes you don't have an explanation for the thoughts you get, and moon उनका कारक है, पर thoughts की जो कुछ भी whatever that is मिलावट हो या pattern हो, बाकी planets दे सकते हैं. This is what I believe. Okay, good answer. Let's move to the next question, which is which graha do people most often misunderstand when discussing occult and paranormal activities and all that? Misunderstand यानी कि blame. या ब्लेम भी करते हैं, और इस ग्रह को आपको क्या लगता है कि इसके बारे में ज्यादा बात ही नहीं हो रही? वही दैत्य भाई जो देव मतलब ग्रह बने राहु केतु, उन पे ही जाता है सब कुछ. Okay, so this is kind of like misunderstood. Yes, yes. Okay, फाइन. मुझे लगता है कि शुक्र भी इसमें आना चाहिए, कि शुक्र को बहुत है ना. शुक्र is overlooked. हाँ, overlooked. It is overlooked. Overlooked. Yes, that is true. शुक्र को बोला जाए कि दैत्य गुरु है, दैत्य गुरु खाली. पर पैरानॉर्मल बोला जाए तो राहु केतु जो अनदेखी है, खुद की अस्तित्व नहीं है ना. लोग बोलते हैं खुद का फॉर्म नहीं है. वैसा. That is a good insight है ना. इनका खुद का अस्तित्व नहीं है, तो ये खुद भी वही चीजों को दिखाते हैं जिनका अस्तित्व मटेरियल वर्ल्ड के अंदर नहीं है. वो दिखते नहीं है, प्रेजेंट है लेकिन दिखेंगे नहीं ह्यूमन आइज को. दैट्स गुड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है. I'm sorry, Lakshman, before we go on to that, एक insight आई है, जैसे कि लाइट स्पेक्ट्रम है, हम विजिबल स्पेक्ट्रम में ही चीजें देख सकते हैं, which is 400 to 700 नैनोमीटर्स. बट बाकी का स्पेक्ट्रम जो है ना, IR वगैरह वगैरह, जो बाकी एनिमल्स में है, sort of that thing. राइट. और वो राहु केतु जो है, ये राहु इज अल्ट्रावायलेट, केतु इज द इंफ्रारेड. राइट, ये स्पेक्ट्रम के बाहर चले जाते हैं, लाइट के स्पेक्ट्रम से. द सेवन कलर्स ऑफ लाइट आर द सेवन ग्रहस. सो दैट इज हाउ वी कैन इंटरप्रेट. Yeah, exactly. है ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो? दिस इज अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन, आई गेस. देखो, द क्वेश्चन गोज लाइक, कैन मर्क्यूरी स्ट्रेंथन द पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस, ओके, और डज इट सिंपली हेल्प अस इंटरप्रेट एंड कम्युनिकेट देम? क्या एक स्ट्रॉन्ग मर्क्यूरी का होना हमारे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस को और बढ़ा सकता है, या फिर सिर्फ वो ये बता रहा है कि भाई सिर्फ कम्युनिकेट आप कर पाओगे, इंटरप्रेट कर पाओगे, समझ पाओगे बस उसको उनसे बातें नहीं कर पाओगे? I think on the face value, interpretation and communication दोनों एक लगते हैं, पर interpretation has more value than communication. I feel it improves your ability to interpret things. For example, जिसका मार्ग बुद्ध स्ट्रॉन्ग है, तो Exactly. क्या वो उन I'll लोगों give से an example, analogy for this. We all have pets, पर pet की भाषा नहीं कर सकते ना हम. We can't speak to pets, but we interpret how the pet is behaving. That is your ability to interpret its emotions. So I feel Mercury helps you understanding, interpret. दैट इज गुड. सही बात है. बुद्धों से बात करनी है अगर आपको, तो आपको को स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए, है ना. क्या पता आप कहीं जा रहे हैं कि आपको हिंदी ही भूत ना मिले, स्पेनिश भूत भी मिल सकता ना. हाँ, ये बात तो सही है. सो दैट इज एक्चुअली इंटरेस्टिंग है ना, क्योंकि वो लैंग्वेज हमारी थोड़ी बोलेगा. Exactly. है कि वो हमारी लैंग्वेज बोले, वो हिंदी बोलता हूँ, मिले मेरे जैसे ही बात कर रहा हूँ. Yeah. हाँ, दैट इज गुड. ठीक है. Yeah. Sorry for that. No worries. Yeah. Yes. So the last question is, which Mahadasha do you think, or Antardasha, or the time period itself, would you think कि जो ये सारी एक्टिविटीज होती है, इनकी रिकरेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं, बढ़ जाती हैं? I feel 8th की मैं बोलूंगा. Okay, and any sort of planet, कोई specific planet? 8th, especially if you have Ketu, not just moon. Like 8th केतु की महादशा, अगर केतु 8th में हो, एंड खासकर 8th हाउस का लॉर्ड शायद मून या मर्क्यूरी या वीनस इन दुष्टों में, मतलब फॉर दिस एपिसोड दुष्ट कहूंगा मैं, क्योंकि व्हाट आई फील इज लाइक 8th इज अननोन एंटिटी. आपको जैसे कि वो महादशा ऐसे खींची उस एनर्जीज में खींची जाती कि आपको पता नहीं कि हम उस पे है कि नहीं, लाइक वी डोंट नो वेयर वी आर, राइट. एंड अंतर्दशा स्पेशली केतु, बिकॉज इट्स लॉट ऑफ हेडलेसनेस. यू because Ketu is headless, it speaks from intuition. So जब intuition है तो communication की कोई नहीं चलती है. You have to feel the intuition. Right. That's what I feel. अंतर्दशा पक्का केतु. हाँ, so Ketu is the graha
to look for, right? Although I said moon पहले, Hmm. पर moon आपको डायरेक्शन देता है कि भाई जाओ. It's now केतु की आती, you are blindfolded. आप जा रहे हो. Now you're more aware of the surroundings, है ना? मून में आंखें खुल गई है एक बार आंखें, तो फिर वो सेंसेस काम करने लग जाते हैं, इंट्यूशन काम नहीं करता. तो दिख रहा है वो is different than what you can feel, right? महसूस, yeah, exactly. और तो yes, so that's pretty much it. The rapid fire is over, and I guess आज तो काफी ज्यादा ही you know in depth हमने discussion किया इस बात पे. We will keep on studying about this more and more, and we will keep on doing research on this topic more and more so that we could help other people, and of course we could understand कि ये जो you know paranormal चीजें हैं या फिर जो चीजें हमको नहीं दिख पा रही है ना, on these sides, on the spiritual side of things, ये सब कुछ हम और एक्सप्लोर करते रहें. It was pleasure hosting you, Malik. Thank you. You have prepared the topic so well. I am fascinated by the information which you have gathered around, and of course, it's very much helpful for all of us viewers. And on behalf of all of us, we would like to thank you for bringing up such a good topic, Malik. So yes, that is pretty much it. If you want to share something about this episode, please go ahead, and then we'll see the viewers off. So I just want to end on a note. जैसे कि हम पैरानॉर्मल पे इतना डिस्कशन किया है, बहुत हैवी टॉपिक है. आप ऑपोजिट स्पेक्ट्रम में आइए, जो भगवान है वो भी उनको भी हम नहीं देख सकते, पर एनर्जी इज ऑपोजिट साइड, वो फेथ है. सो व्हेन यू आर एक्सपीरियंसिंग दीज थिंग्स, फ्लिप योर माइंड टू अदर साइड. ये कुछ नहीं कर सकते. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से. That was very much interesting as an ending note, and I would leave on this ending note as well, because this is the kind of ending we all would look forward to. And that's pretty much it. Everybody have a good day, night ahead, and we will meet again on another episode of Cosmic Coffee. We'll keep on bringing such episodes to you. Thank you, Malik. Thank you, everybody. Bye bye. Hare Krishna.